مسیح میں میرے عزیزو، آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم اچھی امید کے ساتھ آئیے آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں، اور ہماری امید خدا یسوع مسیح سے جڑی ہے، کیونکہ ہم نے پچھلے پروگرام میں سیکھا تھا کہ زندہ امید ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور پاس صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی پاس صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک خدا یو۔ کا شکر ہو، اور خدا کا شکر ہو کہ وہ سلامتی سے آپ کو یہاں پر اس خاص مقصد کے لیے خدا لے کر آیا ہے، اور آپ اس مقصد کو پورا کرنے میں ہماری مدد کر رہے ہیں۔ تھینک یو، تھینک یو۔ بھائی صاحب، پروگرامز کا بڑا اچھا فیڈ بیک ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ لوگ برکت پا رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں میں پھر سے آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے اس پروگرام کا آج کے دن، جو پاسٹر سرفراز رحمت کے ساتھ مل کر ہم کرتے ہیں، وہ ہے برگزیدہ نسل اور مقدس قوم۔ بس اب دعا کرتے ہیں، پھر اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خدا باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے جس میں آپ نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم تیری حضوری میں آ سکے۔ آج تیرا کلام کا کھولا جانا ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ خدا باپ، جو بھی باتیں ہم کریں وہ تیرے روح القدس کے وسیلہ بیان کرنے کا ہمیں فضل ملے، ہم نہیں بلکہ تیرا پاک روح بولے اور سننے والوں کی زندگیوں پر اثر کرے، یسوع مسیح کے نام سے آمین آمین، ایسا ہی ہو۔ جی بس اب پہلے ہم پروگرام کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں ہم اس سوال کو جو ناظرین کی طرف سے آتا ہے، اور آج بھی ایک سوال میرے ہاتھ میں ہے کہ امید اور زندہ امید میں کیا فرق ہے، کیونکہ یہ مائنر سا فرق نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اور امید سے نا امیدی ہوتی ہے، لیکن زندہ امید سے میرے خیال نا امیدی ہو ہی نہیں سکتی۔ زندہ امید کبھی نا امید نہیں ہو سکتی۔ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کا جواب ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے۔ جب یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر مرے، دفن ہوئے، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے، تو وہ جو لوگوں کے لیے نا امیدی تھی نا کہ ایک دفعہ جب کوئی بچھڑ جائے یا ہم سے چلا جائے تو پھر آگے کوئی امید نہیں ہے، تو وہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ ہماری امید کو زندہ امید میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سو میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح کا مردوں میں دفن ہونا اور پھر تیسرے دن جی اٹھنا مسیحیت کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور مسیحیت ایک زندہ امید میں جیتی ہے، اور مایوس نہیں ہے، نا امید نہیں ہے، بلکہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پہلا تسلونیکیوں اس کی 4 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو، ہم نہیں چاہتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانی جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ اور آگے لکھا ہے، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے یسوع مسیح کے وسیلہ ساتھ لے آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیے، جو میں بات کر رہا تھا کلام نے وہ بات ثابت کر دی ہے کہ یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مرے اور پھر جی اٹھے، جو خدا نے اسے زندہ کیا، جلایا مردوں میں سے، اور ہمارے لیے یسوع مسیح کے وسیلہ ایک زندہ امید ہے۔ دیکھیں، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ ہم زندگی میں جیتے ہیں، اور زندگی میں ہی امید ہے۔ ہاں جی، اور وہی زندہ امید ہے۔ اور سسٹر، آج جو ہم بات کریں گے وہ ہم بات کریں گے پہلا پطرس پہلے باب کی 23ویں اور 22ویں اور 23ویں آیت سے، اور پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ زندہ امید کیوں ہمیں بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج اس کی کنٹینیویشن ہے جو ہم پچھلی مطلب سیریز میں سنتے رہے ہیں خدا کے کلام کو، اور اس میں یوں لکھا ہے، اگر آپ پڑھیں 22 اور 23۔ جی میں ضرور پڑھ دیتی ہوں۔ ایکسکیوز می۔ خدا ان کے کلام میں یوں مرقوم ہے، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے، جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت زیادہ محبت رکھو، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ پریز دی لارڈ۔ یہ زندہ امید دراصل ہم میں پیدا کیسے ہوئی ہے، میں یہ آپ سے بات کر رہا تھا۔ تو زندہ امید کا پیدا ہونے کا ایک ہی سبب ہے کہ نہ تو کبھی کلمہ میری بہن مرا ہے اور نہ ہی کبھی روح مرا ہے۔ بالکل، کلمہ بھی زندہ رہے گا اور روح بھی زندہ رہے گا۔ بالکل۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسیحت میں جو خدا نے
हमें ये फजल बख्श दिया है, या हम पर रहमत पहले ना हुई थी, अब जो रहमत हो गई है, और रहमत ये हुई है कि कलाम में लिखे ना यीशु मसीह के बारे में, और कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उस कलाम का ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते बेटे का जलाल। तो खुदा का बेटा यीशु मसीह कलमे के सबब से इस दुनिया में, उसकी कलमा एक वजह तस्मीह थी कि वो इस दुनिया में जिस्म इख्तियार करके, उसके जिस्म में कलाम था, कलाम के सबब से वो इस दुनिया में आया, ठीक है। कलाम मुजस्सम हुआ, वो कलाम जो इब्तिदा से था, वही कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और उसके वसीला से हमने खुदावंद की कुदरत को, खुदा की खूबियों को बेटे में देखा। बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा। तो हमारी जो आयत का मरकज है, जो हमारा टॉपिक है, वो है मुकद्दस बरगजीदा नस्ल और मुकद्दस कौम, और उसी में लिखा हुआ है कि हमने अब क्या करनी है, खुदा की खूबियां जाहिर करनी है। और 22वीं आयत में आप पढ़ रही थी अभी, यहाँ पे लिखा हुआ है, चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को क्या किया है जी, पाक किया है। हक का मतलब भी हक का मतलब सच्चाई है, और सच्चाई का मतलब यीशु है। यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है ना कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। किसी भी नबी और पैगंबर ने, मेरी बहन, उसने दावा नहीं किया कि आई एम द ट्रुथ, आई एम द लाइफ एंड आई एम द वे। एक ही जिंदगी में हस्ती है जिसने ये दावा किया है कि रास्ता भी मैं हूं, राह भी मैं हूं, सच्चाई भी मैं हूं। लोग हकानी की तलाश में तो रहते हैं ना, लोग सच्चाई की तलाश में तो है ना। ये पूरी दुनिया जो है, दरअसल इसके पीछे जो भी खुदा को ढूंढ रहा है, वो ढूंढ क्या रहा है कि मैं किसी ऐसे खुदा की तरफ जाना चाहता हूं जो सच्चाई से मामूर है, जो हकीकत है, जो सच्चा खुदा है। तो यीशु मसीह तो कह रहा है कि आई एम द ट्रुथ। वो तो अपने आप को कह रहा है आई एम द ट्रुथ, मैं हकानी हूं। तो जब ये लिखा हुआ है कि जब तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया, क्या हमने हक की ताबेदारी की है? खुदा ने अपना कलाम जो सच्चा था ना, वो बेटे में भेजा, और हमने बेटे को कबूल कर लिया, हम ईमान लाए हैं, है ना। तो हमने बेटे को कबूल कर लिया, और उसकी हक की ताबेदारी, यानी जो बाप ने बेटा भेजा कलाम दे के, हमने उसे कबूल किया, और उसके कबूल करने के वसीला से वो कलमा जो वजह तस्मिया बना यीशु के जमीन पर आने के लिए, वो कलमा हमारे बातन में रख दिया खुदा ने, और उसी कलमे के वसीला कलाम में लिखा है, अब तुम फानी तुखम से नहीं। देखिए आयत नंबर 23, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं, जो जिस्मानी पैदाइश है ना हमारी, जो अपने माँ बाप से हम पैदा होते हैं, वो फानी है, उसको एक दिन मौत आनी है उसके ऊपर, ठीक है, और जो खाक है वो खाक में मिल जाएगा। लेकिन यहां पे लिखा है बल्कि गैर फानी से, यानी खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है, नए सिरे से पैदा हुए। खुदा ने हमें एक नई पैदाइश दे दी है, खुदा ने हमें एक नया जिंदगी में जीने का एक उसने सिलसिला दे दिया है कि अब हमने जीना कैसे है। तो जो इंसान मरा हुआ था, उस इंसान में दोबारा से खुदा ने जिंदगी रिस्टोर करके उसे जिंदा किया, और अब खुदा वैसा ही आदम की तरह, आदम जो रास्तबाज आदम खुदा ने पैदा किया था, सुनिए, यीशु मसीह के वसीला से वो रास्तबाजी हमारे अंदर दोबारा रिस्टोर कर दी गई है। मैंने कई दफा सुना है, लोग ऐसे कहते हैं कि लो जी, आदम और हवा ने जो है वो गलती कर गए तो हमें इस फंसा दिया या इस मुश्किल में डाल दिया है कि आज हम वो सजा भुगत रहे हैं। देखिए, जो आदम ने किया था वो तो गुजर गया, उसको तो आप छोड़ दें। अब वही सेम जो खुदा ने आदम को रास्तबाज पैदा करके और अदन में रखा था, आज खुदावंद आपको उससे भी बढ़कर अपने कलमे के वसीला नया गुस्ल देकर आपको रास्तबाजी में दोबारा रिस्टोर करता है कि अब खुदा हम में से देखना चाहता है। आदम पे तुम कहते हैं उसने ये किया तो हमें ये भुगतना पड़ रहा है, आज हम क्या कर रहे हैं? खुदा ने हमें नए पैदाइश का गुस्ल अपने कलाम के वसीला दे दिया। अब खुदा ने वो रास्तबाजी हमारी रिस्टोर कर दी है। देखिए, रोमियो के खत में लिखा हुआ है कि इससे पहले गुनाह हम पर बादशाही करता था, कि बेटा आता गुनाह हम पर बादशाही करता था, लेकिन अब खुदा के बेटे यीशु मसीह के कलाम के सबब से अब खुदा के कलमे को हम मौका दे के वो हम पर बादशाही करे। और दुआ रबानी में हम यही तो कहते हैं ना, खुदा हम तेरी बादशाही आए। तो अगर उसकी बादशाही हम चाह रहे हैं तो उसकी बादशाही को अपने ऊपर अप्लाई होने दे, और उसकी बादशाही का तकाजा ये है कि हम एक पाक जिंदगी, एक क्या करें जी, पाक जिंदगी गुजारें। और खुदावंद यही तो मैं तलकीन करता है
देखिए 17वीं आयत में क्या लिखा है इसी बाप की, जो आपने 22 पढ़ी, 17 में लिखा, जब के तुम बाप कहकर उससे दुआ करते हो जो हर एक काम के मुआफिक बगैर तरफदारी के इंसाफ करता है, तो अपनी मुसाफरत का जमाना खौफ के साथ गुजारो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा नकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिया से नहीं हुई, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से हुई है। उसका इल्म तो बना आलम से पेशतर था, मगर ज़हूर आखिर जमाना में तुम्हारी खातिर हुआ कि उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। हालेलुया, खुदा उनका शुक्र हो, खुदा पर हो, ईमान और उम्मीद हमारी खुदा पर हो। और जब हमारा ईमान और उम्मीद खुदा पर है तो फिर हमारी उम्मीद जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। जी, बड़ी पुरजोश और पुर उम्मीद बातें हो रही थी जी, वो ये हम बात कर रहे थे 21वीं आयत में, सॉरी, उसके वसीला से खुदा पर ईमान लाए हो, जिसने उसको मुर्दों में से जलाया और जलाल बख्शा, ताकि तुम्हारा ईमान और उम्मीद खुदा पर हो। हालेलुया, जो खुदा पर उम्मीद है वो तो मुर्दा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं होगी। सकती। प्रेज द लॉर्ड। और फिर अब हमारा फखर देखें, हमारे काम नहीं है, हमारा फखर हमारा अच्छे किरदार नहीं है, हमारा फखर खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाना है। अब हम सवाल करते हैं कि फिर अच्छे काम हमें नहीं करने चाहिए? नहीं, बाइबल कहती है कि अब जिस ईमान में हम पैदा कर दिए गए हैं, वो जो हुक्म तख्तियों पर लिखे गए थे, अब खुदा ने वो हुक्म तख्तियों पर नहीं, अब हमारे दिलों पर रूह कुद्दस के वसीला निकलने शुरू कर दिए। और मैं इस दफ़ा बात भी करूँगा कि खुदा इस कलाम को जो अब हमारे दिलों की तख्तियों पर लिखा गया है, वो किस तरह अपनी ताबेदारी कराता है। यकीन माने कि जब आप खुदावंद के कलाम के और उसके रूह कुद्दस के ताबे होते हैं ना, फिर खुदा अपने रूह कुद्दस के वसीला आपसे बातें करता है, आपसे खुदावंद कलाम करता है, आपके अंदर से खुदा इस बात को जो है वो निकालता है कि हम खुदावंद की ताबेदारी में आगे बढ़ें। मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ, बिलीव करें, मैं सिर्फ प्रीच नहीं करता कि मैं इसको प्रीच कर रहा हूँ, मैं खुदावंद को प्रैक्टिस करता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जो चीजें हम बयान कर रहे हैं इसको नॉलेज के तौर पर बयान करें कि खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है तो इसलिए नहीं। मैं इसको प्रैक्टिस करता हूँ, क्या वाकई खुदा हमारे साथ बातें करता है। और आप यकीन माने, जैसे जैसे आप खुदावंद की कुर्बत में, उसकी मोहब्बत में, उसके ईमान में, उसके मुकाशफे में आप डीप जाना शुरू कर देते हैं ना, खुदावंद का रूह आपके साथ सरगोशियां करना शुरू कर देता है, खुदावंद का रूह आपके साथ बातें करना शुरू कर देता है। कोई शक नहीं। और मैंने देखा है कि कई दफा रात को जब दुआ करके सोते हैं, खुदा के फजल को मांग के सोते हैं, खुदा से बातें करने के लिए खुदा से कहते हैं, खुदा हमसे कलाम कर। और मैंने कई दफा, आप यकीन माने कि पाकरू के वसीला ये कहा कि खुदा मैंने सुबह इतने बजे उठना है, और पाकरू उतने बजे उठा देता है। और ऐसे जैसे बाप या माँ आपको मोहब्बत से प्यार से नहीं उठाती सुबह के टाइम पे और कहती कि बेटा आपने कहा था मैंने सुबह ये काम करना है, इतने बजे उठा देना, इस तरह मैंने पाकरू को अपनी जिंदगी में काम करते हुए देखा है कि मैं जब कहता हूं ना कि मैंने इतने बजे उठ के दुआ करनी है, आप यकीन माने कि खुदा का रूह उस वक्त आपको बेदार कर रहा होता है कि बेटा उठ, तूने ये बात कही थी और आजा अब बैठ के हम बातें करें। और खुदा की हुजूरी में वो वक्त जो गुजरता है ना, जो खुदा के साथ गहराई में जाने का वक्त होता है, मेडिटेशन का वक्त होता है, कलाम पढ़ने का वक्त होता है, खुदा से ठंडे वक्तों में बातें करने का वक्त होता है, ये खुदा ने मेरे स्टोर किया है बाजी। आप यकीन माने कि ये जो आदम और हवा ने एक अच्छा वक्त बाग-ए-अदन में गुजारा है, अब यीशु मसीह के वसीला से वो वक्त हमें खुदा ने दिया हुआ है। लेकिन हम अपना आदन कहाँ ढूंढ रहे हैं? दुनिया में नहीं। कलाम में लिखा है मत्ती 6 बाब में कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी का दरवाजा बंद कर, हैं?
तो जाना उस पोशीदगी में जहां खुदा के साथ तू सैर करे, बातें करे, खुदा के साथ बातचीत करे और फिर खुदा तेरे साथ बातचीत करे, और उसके सबब से क्या होता है, हमारा बातन रिस्टोर होता है। ये कितना बड़ा हक है जो खुदा ने हमें दिया है कि अकेले में मिल, यस यस, तेरा और मेरा ताल्लुक हो, हम दोनों हों। ये कितनी बड़ी बात है जिसको हम नहीं समझते, हम निकल जाते हैं गलियों कूचों में और हम दिखावा करना चाहते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, कोई शक नहीं। तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अभी मैं आपके सामने एक आयत पढ़ना चाहता हूं, और ये है यूहन्ना की इंजील, और उसका बाब नंबर है 1 और उसकी आयत नंबर मेरे ख्याल 13 या 14 है। देखते हैं खुदा उनके कलाम में से, यूहन्ना की इंजील में से, और ये बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जानें। यहाँ पे लिखा हुआ है, बल्कि 13वीं से 12 और 13 पढ़ दो दोनों। लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर क्या लाते हैं, ईमान लाते हैं, खुदा के बेटे बेटियां बनने का हक बख्शा। और आगे लिखा है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। सिस्टर, ये कोई छोटी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, खुदा से पैदा हुए। और यहाँ हमने पढ़ा कि तू अब गैर फानी तो हम नहीं है। हाँ जी, फानी से नहीं बल्कि गैर फानी से। गैर फानी का मतलब है खुदा का कलाम, ठीक है। तो अब ये कह रहा है तुम खुदा से पैदा हुए। मुझे ये बात बताएं, जो खुदा से पैदा हुआ है क्या वो गुनाहगार है या पाक है? ये मैं सवाल ऑडियंस पे रखता हूँ। बिल्कुल, जो खुदा से पैदा हुआ है, मैं आपसे मुखातब हूँ ऑडियंस, जो खुदा से पैदा हुआ है क्या वो गुनाहगार है या पाक है? और अगर आप इस मुकाशफे को समझ जाएं तो फिर बाइबल मुकद्दस ये कहती है, प्रेज द लॉर्ड, कि तुम खुदा की खूबियां जाहिर करोगे। इसी की 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और कलाम मुजस्सम हुआ है ना, यही लिखा हुआ है ना, बिल्कुल 14वीं आयत में लिखा हुआ है, और कलाम मुजस्सम और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। यीशु मसीह आया इकलौता था मेरी बहन, वापस इकलौता नहीं गया, वक्त पे लौटा था, फर्स्ट बॉर्न। क्यों? वजह क्या थी कि उसके बाद जितने भी खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, वो उसी तरह जिस तरह यीशु मसीह कलमे की पैदाइश है, हमें भी कलाम के वसीला खुदा नई पैदाइश का गुस्ल देगा, और हम उसको अब्बा और यीशु मसीह को भाई कहकर पुकारेंगे। और इसीलिए इब्रानियों 2:11 में लिखा हुआ है, वो हमें भाई कहने से नहीं शर्माता। क्या सबब है कि वो भाई कहने से नहीं शर्माता? इसलिए नहीं शर्माता कि क्योंकि हमें भी उसने उसी कलाम में नई पैदाइश का गुस्ल दे दिया है जिसमें वो है। और जब बाप, बेटा और रूह कुद्दस एक हैं, तो बेटा कहता है अब मैं तुम्हें भेजता हूं ताकि तुम बहुत सा फल लाओ। बाप ने मुझे भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं। तो हम उस फैमिली में शामिल हो गए हैं जो बाप, बेटा और रूह कुद्दस में है, और हमें उसमें शामिल कर दिया गया है। किसके वसीला? कलमे और रूह के वसीला। तो ये जो बरगजीदा नस्ल है, ये जो मुकद्दस कौम है, ये टाइटल मसीही कौम का टाइटल है। और मैं आपके लिए बरकत की बात अब ये करूंगा कि जब हम नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे, मैं हर एक खत और लेटर को जो पढ़ूंगा ना, उसके अंदर जो पहली 4 आयतें हैं, 5 आयतें हैं, उसमें से मैं आपको पढ़ पढ़ के सुनाऊंगा कि हर कलीसिया को खत लिखते हुए जो भी खुदा उनके पास आ रहे थे, जैसे करंथस की कलीसिया है, रोमियो की कलीसिया है, एफेसस की कलीसिया है, कुलसियों की कलीसिया है, गलतियों की कलीसिया है, इन सब के हम फर्स्ट लेटर जो पहले बाप के जो 4-4, 3-3 आयतें हैं ना, हम वो पढ़ेंगे। उसमें आप देखिएगा किसी भी चर्च को लेटर लिखते हुए पौलुस रसूल ने गुनाहगार कलीसिया नहीं कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने हमेशा ये कहा है उन मुकद्दसों के नाम, उन बरगजीदों के नाम, उन चुने हुए लोगों के नाम, उन पाक लोगों के नाम जो जा बजा इन कलीसियों में रहते हैं। हालांकि उनके अंदर झगड़े भी हैं, उनके अंदर लड़ाइयां भी हैं। यहां करंथियों के हाथ में क्या मसीह बट गया? क्योंकि उनके अंदर लड़ाइयां झगड़े थे। लड़ाइयां झगड़े जिस्म में होना ये कोई बड़ी बात नहीं। उसकी वजह है कि हम जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारी कमजोरियों से खुदा वाकिफ है, लेकिन हमारी रूह को उसने कलाम में लिखा, रूह के पाक करने के वसीला से, आपकी ताबेदारी के वसीला से हमारी खुदा ने पाकीज़गी अपने बेटे के वसीला उसने मुकर्रर की है।
ٹھیک ہے. تو جب خدا نے ہمیں پاکیزہ بنا دیا ہے تو اب ہم نے جسم میں فائٹ ہی تو کر کے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم کاملیت کی طرف بڑھیں. تو جسم میں جو ہماری کمزوریاں ہیں خدا ان سے واقف ہے, لیکن خداوند یہ کہتا ہے باجی کہ جو پاکیزگی تمہیں روح میں دے دی گئی ہے اس کے وسیلہ جسم پر ہم نے غالب آنا ہے. غالب میں یہی بات کہنے والی تھی کہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ روح کے وسیلے سے ہم اپنے جسم پر غالب آ سکتے ہیں. آمین. اسی لیے تو پولس کہتے ہیں نا بہن کہ میں اپنے بدن کو مارتا اور کوٹتا ہوں. کیوں بدن کو مارتا اور کوٹتا ہے؟ تاکہ روح کی تابعداری میں آ جائے. اور روح کی تابعداری میں ہم جیسے جیسے آ جائیں گے ویسے ویسے ہمارے اندر سے گناہ, غلطیاں, خطائیں, چیزیں یہ نکلتی چلی جائیں گی اور روح ڈومینیٹ کرے گا. روح ہمارے اوپر جب بادشاہی کرے گا تو پھر دیکھیں جسم خود بخود تابع ہونا شروع ہو جائے گا. ایک عام سی بات ہے کہ کوئی خیال, کوئی خواہش کس طرح ہم پہ غالب آ جاتی ہے اور ہم اس کے تابع ہو جاتے ہیں. بالکل. تو اسی طرح جب ہم اپنے بدن کو 2 نمبر پہ رکھیں اور اول نمبر جو ہے وہ ہم روح کو دیں, خدا کو دیں, تو ظاہر ہے وہ غالب آئے گی. ہاں جی. یہ تو ہم پر ہے کہ ہم کس طرح سے خدا ان کے ساتھ اپنا رشتہ رکھتے ہیں, یا کیا بھوک یا کیا کس چیز کی بھوک اور کس چیز کی پیاس کو محسوس کرتے ہیں. میں ایک بات کروں آگے تھوڑی؟ جی پلیز پلیز. جی آیت نمبر 13 میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہاں پہ لکھا وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوا. کیا وجہ ہے کہ خدا نے بنی انسان کو اپنی نسل بنا کر اس دنیا میں رکھا ہے, یا اپنی قوم بنا کر رکھا ہے, اپنا نام دے کے رکھا ہے, اپنا وقار, اپنی عزت دے کے رکھا ہے, تاکہ ہم اس کی خوبیاں ظاہر کریں. اور سنیے میری بہن, یہ خوبیاں ہماری طرف سے ظاہر نہیں ہوں گی, یہ خوبیاں ہوں گی خدا کے کلمے اور خدا کے روح کے سبب سے. بالکل. ہاللیلویہ. خدا ان کا شکر ہو. پاس صاحب بہت بہت شکریہ اس زندہ کلام کو, زندگی بخش کلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور وسیلہ بننے کے لیے. ہم آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خدا اسی طرح سے آپ کو استعمال کرتا رہے اور اسی طرح سے پاک روح آپ کے جسم میں کام کر کے ہم تک کلام کو بالکل درست پہنچائے. یہ بھی بڑی ضروری بات ہے, کیونکہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ ملاوٹ بہت ہو گئی ہے. ہماری اپنی خواہشات, ہمارے اپنے ارادے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو پیور کلام وہ ہے جو روح کے وسیلے سے ہمیں حاصل ہو. تو خدا ان کا بہت شکر ہو. ہم آپ کے دل سے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح ملاقات ہوتی رہے گی اور خدا ان کا کلام ہم دونوں مل کر لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اور اپنی زندگی میں بھی اسے شامل کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. سامعین, اس پروگرام میں ایک بات ہوئی تھی کہ ہمارا عمل جو ہے وہ کچھ نہیں, کہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے کیونکہ ہم پہ فضل ہوا ہے. اس وجہ سے تو پھر کیا ہمیں اچھے کام نہیں کرنے چاہیے؟ اس کے وسیلے سے میں جو مجھے خداوند نے کلام دیا تھوڑا سا میں آپ سے شیئر کروں گی کہ دیکھیں, جب ہم میں خداوند کا روح آ جاتا ہے تو گناہ ہم میں رہتا ہی نہیں ہے نا. پھر ہم پورے کے پورے نئے ہو جاتے ہیں, ہمارا دل نیا ہو جاتا ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے, اور جب برا آدمی ہے وہ اپنے دل کے برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے. تو جب خداوند کا روح ہم میں کام کرے گا تو یہ عمل ہمارے جتنے بھی ہیں وہ خود بخود درست ہو جائیں گے, انہیں درست کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اپنا بہت خیال رکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین. Do not forget to like the video, subscribe PTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.